کیونکہ یہ ہمارا سب خاندانی سلسلہ تھا کہ میرے دادا نانا یہ سب جو ہے اس سلسلے سے جڑے ہوئے تھے۔ روایتی پیروں سے ہٹ کے نا اپنے سلسلے کو اور جو ہے اپنے کاروبار کو علیحدہ رکھنا چاہتا۔ لم يأتِ نذيرك في نظر، لم يأتِ نذيرك في نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے۔ جی میں بخاری سید ہوں اور اسی وجہ سے سادات کلینک کے نام سے کلینک کا نام رکھ دیا، اور جو سلسلہ میرا بیعت ہے وہ سلسلہ چشتیہ صابریہ سلسلے سے ہے۔ ناظرین، ٹی وائس آف پنجاب کے ساتھ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، یہ عارف اعلیٰ کی ایک ایسی نامور شخصیت ہے جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ یہ ایک روحانی شخصیت ہے اور آج ایسے سوالات کے جوابات ان سے لیں گے جو ہماری عارف اعلیٰ کی عوام جو ہے وہ جاننا چاہتی ہیں۔ ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کے بہت سے مریض ہیں اور اسی کے ساتھ دیکھا جائے تو ان کے بہت سے مریدین بھی ہیں، اور عارف اعلیٰ کے ایک گدی نشیں ہیں۔ آج ان سے جانیں گے کہ یہ جو اپنا ان کا ڈاکٹری کا سلسلہ ہے، ان کے مریض ہیں، مریدین ہیں، ان کی گدی ہے، اور وہ سارا کچھ کیسے چل رہا ہے۔ اور یہ ڈاکٹر صاحب کا شاید پہلا انٹرویو ہو، اس سے پہلے لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو جو ہے نا وہ ملاقات تو کی ہوگی، لیکن کبھی بھی ان کو آپ نے اسٹوڈیو میں یا کسی انٹرویو میں نہیں دیکھا۔ ان کا بہت شکریہ، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم وائس آف پنجاب کے نام کیا۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، کیسے ہیں؟ بہت اللہ کا شکر ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم جو ہے وائس آف پنجاب کے نام کیا ہے۔ تو آج کے انٹرویو کا ہم سٹارٹ لیتے ہیں۔ تو آج کا میرا پہلا سوال ہے کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کا آغاز کہاں سے کیا اور کہاں تک کمپلیٹ ہوئی ہے؟ جی ابتدائی تعلیم عارف اعلیٰ میں ہی، مڈل اسکول عارف اعلیٰ نمبر 1، اور پھر گورنمنٹ ایم سی ہائی اسکول عارف اعلیٰ میں میٹرک مکمل کیا۔ پھر ادھر سے ہی ایف ایس سی جو ہے گورنمنٹ ڈگری کالج عارف اعلیٰ سے مکمل کی، اور ڈی ایچ ایم ایس میں نے المراد ہومیوپیتھک کالج ساہیوال سے مکمل کیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ ماشاءاللہ عارف اعلیٰ کے ایک نامور گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں اور گدی نشین بھی ہیں۔ یہ سلسلہ کب سے چل رہا ہے، گدی نشین والا، مریدین والا؟ کیونکہ یہ ہمارا سب خاندانی سلسلہ تھا کہ میرے دادا نانا یہ سب جو ہے اس سلسلے سے جڑے ہوئے تھے، تو اس وراثت میں ہی ہمیں یہ سارا کچھ ملا۔ اس لیے بچپن سے ہی سب کچھ دیکھتے آئے، اسے ہی جب ایک بندے کو مل جاتی ہے، ہاں مل جاتی ہے، تو پھر اس کا بوجھ اٹھانا پڑ جاتا ہے، اور وہ سارا کچھ سب کے ساتھ مل کے دوستوں کے تعاون سے، اور ڈاکٹری بھی چل رہی ہے اللہ کا شکر ہے، اور پیری مریدی بھی چل رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے آپ کا نام انٹرویو کے سٹارٹ میں نہیں لیا۔ یہ ہمارا پہلا انٹرویو جس میں ہم نے اپنے مہمان کا تعارف نہیں کروایا، چونکہ آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ ایک طرف مریض ہیں اور دوسری طرف مریدین ہیں، کیسے ہینڈل کرتے ہیں؟ دراصل میں نا روایتی پیروں سے ہٹ کے نا اپنے سلسلے کو اور جو ہے اپنے کاروبار کو علیحدہ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ جب کوئی مرید یا کوئی روحانی تکلیف میں ہمارے پاس آتا ہے تو وہ بیچارہ خود اتنا پریشان ہوتا ہے کہ نہ کہ میری نظر اس کی جیب پہ ہو یا اس کی کہ اس سے مجھے کیا ارننگ ہوگی، مجھے یہ پریشانی نہ ہو، اور مجھے یہی پریشانی ہو کہ میں نے اس کی تکلیف کیسے دور کرنی ہے، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے۔ اس لیے میں نے اپنے کاروباری سلسلے کو بالکل علیحدہ رکھا اور پری مریدی کو بالکل علیحدہ رکھا، اور اللہ کا شکر ہے دونوں ہی بہت احسن طریقے سے چل رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ سید خاندان سے ہیں۔ سادات جو ہے وہ آپ کا کوئی آپ کا جو سلسلہ ہے، گدی کا کوئی سلسلہ ہے، اور آپ نے اپنی شاپ کا نام بھی سادات ہومیو رکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں ذرا ڈیٹیل بتائیں۔ جی میں بخاری سید ہوں اور اسی وجہ سے سادات کلینک کے نام سے کلینک کا نام رکھ دیا، اور جو سلسلہ میرا بیعت ہے وہ سلسلہ چشتیہ صابریہ سلسلے سے ہے۔ وہ میں اپنے نانا جان سے ان سے بیعت ہوں، اور وہیں سے انہی سے مجھے خلافت ملی ہوئی ہے، اور اسی سلسلے کو میں لے کے آگے چل رہا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، لوگ جو ہیں وہ ہومیوپیتھک علاج کو اتنا بہتر نہیں سمجھتے اس دور کے اندر، تو ماشاءاللہ آپ کے پاس دیکھا گیا کہ مریضوں کا لامتناہی سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، اللہ برکت دے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ جب انسان اپنے پیشے کے ساتھ مخلص ہو، اپنے پیشنٹس کے ساتھ مخلص ہو،
अपने दोस्तों के साथ और मिलने वालों के साथ मुखलिस हो, तो ये सारा सिलसिला अल्लाह ताला खुद ही उसमें बरकतें भी डाल देता है, रहमतें भी डाल देता है, इज़्ज़तें भी डाल देता है और शिफा भी डाल देता है। डॉक्टर साहब, आप आरिफ आला के एक अहम तरीन जो है ना वो दरबार आलिया के गद्दी नशीं हैं। ये गद्दी का सिलसिला आपने बड़ी डिटेल के साथ हमें बता दिया है। इनका जो उर्स मुबारक है वो इस्लामी तारीख़ों में किन दिनों में स्टार्ट होता है, कितने दिन का चलता है, और आप एक मदरसे के माशाल्लाह मुतवल्ली भी हैं, उनको भी चला रहे हैं। ये सारा कुछ कैसे हैंडल करते हैं? इतना टाइम कैसे मैनेज होता है? मदरसा वो बिल्कुल अलहदा है, उसके जामिया हसामुल हरमैन के नाम से, और अल्लाह का शुक्र है वो बहुत बेहतर तरीके से दूसरे मदरसों के से हट के बिल्कुल चल रहा है। उसके लिए हमें ना किसी के पास जाने की ज़रूरत होती है, ना चंदा इकट्ठा करने की, ना ही बच्चों को किसी के घर जाके कुरान पाक पढ़ के चंदा इकट्ठे करने की ज़रूरत होती है। अल्लाह का शुक्र है हमारे मदरसे के बच्चे आज तक किसी के घर में कुरान पाक पढ़ने नहीं गए, वो अपनी सिर्फ़ तालीम पे फ़ोकस करते हैं, ठीक है ना? उन्हें कोई लालच नहीं है, कोई वो नहीं है कि हमने किसी के घर जाके कोई महफ़िल आ रही है या कुरान पाक पढ़ना है जाके। उस तरह उनका बच्चों का फ़ोकस उधर से तालीम से हट के उस दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन जो है बाकी जो सिलसिला है उर्स का, वो 23 रजबुल मरजब को हर साल हमारा सालाना उर्स होता है और 2 दिन का वो सिलसिला होता है। मुरीदैन भी काफ़ी तादाद में आते हैं और बहुत जोश व खरोश से वो सारी महफ़िल चलती है और बहुत रूहानी और वजदानी महफ़िल होती है और लोग बहुत ज़ौक़ व शौक़ से शरीक होते हैं। उसमें महफ़िल समा भी होती है, नात ख़वानी भी होती है, मिलाद भी होता है। ये सारे सिलसिले सारे इकट्ठे ही चलते हैं इंशाअल्लाह। आपकी जो उर्स मुबारक के दिन होते हैं उसमें देखा गया है कि बड़ा पुरसुकून माहौल होता है। बाकी जितने भी पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर उर्स हो रहे होते हैं, इतना सुकून, इतना इत्मीनान, मुरीदैन का अंदर बड़ा बड़ा दिलचस्प वो माहौल होता है। ये कैसे मैनेज करें? दरअसल हम तशहीर नहीं चाहते, इसलिए हम बाहर से लोगों को इनवाइट नहीं करते। जो उन दिनों में जो हम मुरीद हमारे मेहमान आए हुए होते हैं, हम सिर्फ़ उन्हें ही देखते हैं और जो हमारा वो सिलसिला चल रहा होता है उसी को लेके चल रहे होते हैं। जिस तरह मेरे बाप, दादा, नाना की सिलसिले से हम देखते आ रहे हैं, उसको उसी रूह से लेके चलते हैं। ख़ालिसतन जो जैसे उनसे हमने सीखा है, उसी तरह ही हम उसे आगे बढ़ाते हैं। उसमें ना कोई तशहीर का वो होता है, ना कोई दिखावे का, ना किसी चीज़ का, इसलिए वो बहुत अलहदा सी महफ़िल होती है, बहुत बेहतर होती है। डॉक्टर साहब, आरिफ आला के लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर साहब जो दुआ देते हैं ना उसके साथ दुआ भी करते हैं, जिस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके हाथ में शिफा रखी है। इसके पीछे क्या राज है? एक तो घराना हमारा ऐसा है कि इसमें हर किसी के लिए दुआ निकलती है। दूसरा, मुआलिज को हमेशा ऐसा ही होना चाहिए कि दवा तो देनी चाहिए, लेकिन उसे अपने रब से भी दुआ करनी चाहिए कि या अल्लाह, जिसे तू मेरे पास भेज रहा है उसे शिफा भी अता फ़रमा। तो यकीनन अल्लाह ताला दुआओं को सुनते हैं, तो अल्लाह ताला शिफा भी दे देते हैं। डॉक्टर साहब, आरिफ आला के लोगों के अलावा मैं मुरीदैन की बात करूं तो माशाल्लाह बहुत से गद्दी नशीं पाकिस्तान के अंदर हैं। आपका मजाज, ख़यालात, सोच बाकी गद्दी नशीनों से मुख्तलिफ है। लोग आपसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं? ये तो लोगों की वो है, मेरे बारे में मोहब्बत है ना कि इसमें या मेरे रब की इनायत है, उनका मेरे रब का करम है, या मेरे मुर्शिद की दुआएं, जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला है। वरना मेरी ज़ात में तो कोई ऐसी है वो मुझे नहीं कोई ख़ास बात नज़र आती कि जो हो कि जिसे मैं समझूं कि ये ऐसी है तो जिसे देख के लोग प्यार करते हैं। ये सब मेरे रब का करम है। लोगों के अंदर ये पेशीन गोई आपके बारे में है कि माशाल्लाह डॉक्टर साहब बड़े फिट हैं, एज काफ़ी है, बाल सफ़ेद हैं। इतनी फिटनेस का राज क्या है ताकि लोगों को भी फ़ायदा हो सके? इंसान लोगों के लिए अपने दिल को साफ़ रखे, अपने रिश्तेदारों में, अपने मिलने वालों में। जो कोई आपके साथ जैसा मर्ज़ी सलूक करे, लेकिन आपका रवैया उनके साथ बेहतर होना चाहिए। आपके दिल में उनके लिए कोई वो नहीं होनी चाहिए। तो अल्लाह ताला फिर
खुद ब खुद आपके लिए बेहतरी के रास्ते पैदा कर देता है और आपको सेहत भी अता कर देता है, आपकी मुश्किलें भी दूर कर देता है, आपकी परेशानियाँ भी दूर कर देता है, आपके मामलात भी आसान फरमा देता है। जब आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ कर देता है। डॉक्टर साहब इतना धीमा लहजा, नरम मजाज, ये सारा कुछ कोई ख़ानदानी है, कोई पीछे से विरासत में आपको मिला है, या मतलब आप ही बाकी ख़ानदान से मुख्तलिफ हैं? लोगों का ये कहना है कि हमने बहुत से डॉक्टर देखे हैं जो मरीज़ों के साथ तल्ख़ लहजा करते हैं। कुछ आपके पास मरीज़ आते हैं वो बड़े आपसे अजीबो-गरीब रवैया भी करते हैं, पंजाबी में कहते हैं दिमाग झट लैंदे ने, लेकिन आपका रवैया उनके साथ वो नरम ही रहता है। इसकी क्या रीज़न है? मुआलिज को हमेशा ही अपने मरीज़ के साथ नरम लहजे वाला होना चाहिए, क्योंकि कोई तकलीफ़ में आता है, परेशानी में आता है, तो वो ज़ाहिर बात है कि पहले ही तकलीफ़ में है, पहले ही परेशानी में है, लेकिन अगर आप भी उसके साथ उलझ के उसकी परेशानी बढ़ाओगे तो फिर वो बेचारा क्या शफ़ा पाएगा। कहते हैं कि मुआलिज अगर अच्छे तरीके से बोल ही ले तो आधी बीमारी दूर हो जाती है। और ऐसे ही है कि बाज़ दफ़ा ख़ास तौर पे औरतों में ऐसा मामला होता है कि वो बार-बार एक ही क्वेश्चन को बार-बार करती रहती हैं और बहुत ज़्यादा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने बर्दाश्त दी है कि वो खुद से ही जब आदमी खुद पे वो ये देखता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अल्लाह ताला इन्हें मेरे पास भेजे जा रहा है, तो फिर ये मामला होता है ना, तो फिर खुद ही नरमी भी आ जाती है। डॉक्टर साहब आपके बच्चे कितने हैं? उनकी जो तालीम है, आप माशाल्लाह सादात घराने से हैं, सैयद ख़ानदान से हैं, उनकी तालीम इस्लामी चल रही है, दुनियावी चल रही है, वो भी डॉक्टर ही बन रहे हैं या आपकी तरह मतलब गद्दी नशीं वाले सिलसिले में आएँगे? बड़ा बेटा माशाल्लाह से जो है मेरा उस वो हाफ़िज़ कुरान भी है, सैयद मोइनुद्दीन। जब मैंने मदरसा शुरू किया तो पहले साल में मदरसे को शुरू करने में मैंने इसीलिए मदरसे को शुरू किया कि मैंने सबसे पहले अपने बेटे को वहाँ दाखिल किया, ताकि मुझे पता लगेगा कि क्या कमी है, क्या मैं अपने बेटे के लिए क्या करना होता तो मैं क्या करता और दूसरों के बच्चों के लिए भी मैं वही करूँ। तो उस एग्ज़ाम्पल को मैंने रखते हुए मैंने अपने बेटे को सबसे पहले दाखिल करवाया और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उसे ऐसा ज़हन दिया है, उसने माशाल्लाह से 1.5 साल में हिफ़्ज़ मुकम्मल किया और अब वो एफएससी के पार्ट सेकंड में उसने एग्ज़ाम दिए हुए हैं। अल्लाह बेहतरी के नताइज लेके आए और वो अब एमडी कैट की तैयारी कर रहा है। बेटी जो है एफए के सेकंड ईयर में है, छोटा बेटा 7th क्लास में है। होमियो की तरफ जाएँगे या एलो की तरफ जाएँगे? अभी मैंने बच्चों को फ़ोर्स करने का मेरा वो माइंड नहीं है, जहाँ उनका माइंड होगा जिस तरफ जाने का वो उसी तरफ ही जाएँगे। मैं किसी को अपने बच्चे को फ़ोर्स नहीं करना चाहता कि वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कोई फ़ील्ड इख्तियार करे, वो अपनी मर्ज़ी से जो जिस चीज़ में उसका दिल करता है वो उस तरफ जाए वो। आपके बाद आपकी गद्दी के वारसों में अगर देखा जाए तो आपके बाद किनका नंबर आ रहा है? बड़ा बेटा जो है उसी का ही जो है होगा इंशाल्लाह। वैसे खिलाफत तो मेरे 4-5 लोग खलीफा हैं, वो भी संभालेंगे। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतरी के वो लेके आए, जो अल्लाह ताला चाहेंगे वो ऐसे हो जाएगा इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब होमियो के अंदर आपने माशाल्लाह एक लंबा पीरियड गुजारा है, आरिफ आला की आवाम की बड़ी खिदमत की है। शागिर्द कितने हैं और वो किस किस जगह पे जो है ना वो आवाम की खिदमत कर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है, मुझे 25 साल हो गए हैं होम्योपैथिक प्रैक्टिस करते हुए और तकरीबन 7 से 8 शागिर्द हैं जो मुख्तलिफ़ शहर के भी और बैरून शहर भी मुख्तलिफ़ जगहों पे वो अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है वो अवाम की खिदमत कर रहे हैं जो यहाँ से सीख के गए हैं। मेरा यही तरीका है कि मैंने कभी अपने शागिर्दों से कोई चीज़ छुपाई नहीं। जब भी अब भी वो इसी तरह ही दोस्तों की तरह, भाइयों की तरह जब भी मुझे फ़ोन करते हैं, कोई केस डील करना हो या किसी मुतल्लिक पूछना हो तो वो अब भी ऐसे ही फ़ोन कर लेते हैं और मेरा अब भी अल्लाह का शुक्र है उनसे रवैया ऐसा ही है। डॉक्टर साहब आपको देखा गया है आरिफ आला के अंदर के दोस्त अहबाब बहुत कम हैं। आप अपने होम्योपैथिक प्रैक्टिस के बाद घर में ही महदूद हैं। क्या बात है? बाकी मजालस दुनियादारी में जाना अच्छा नहीं लगता?
नहीं, ऐसी बात नहीं है, जहाँ कोई दोस्त बुलवाता है तो मैं जाता भी हूँ, लेकिन मेरा सिलसिला कुछ इस तरह का है कि मदरसा भी है, उसे भी टाइम देना पड़ता है, पीरी मुरीदी भी है, उसे भी टाइम देना पड़ता है, क्लिनिक भी है, उसे भी टाइम देना पड़ता है, फैमिली भी है, उसे भी टाइम देना पड़ता है। तो फैमिली में मैं सबसे बड़ा हूँ, तो इस वजह से मुझे मेरी मसरूफ़ियत उधर भी हैं। जो जुम्मे का दिन मैंने मखसूस रखा हुआ है जो मुरीदैन के लिए, कहीं कोई फौतगी हो जाए, मिलना मिलाना हो, तो वहाँ वो जुम्मे के दिन वहाँ जाना पड़ता है। बाकी दिन, क्योंकि डॉक्टर ऐसा पेशा है कि इसमें आपकी छुट्टी नहीं है, तो वो बाकी दिनों में क्लिनिक को फुल टाइम देता हूँ। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस देखा गया है कि होम्योपैथिक को बेहतरीन इलाज नहीं समझा जाता। हमारी नई नस्ल के अंदर अगर देखा जाए, अगर हम किसी को डॉक्टर बनाते हैं किसी बच्चे को, तो वो एलो का बनाते हैं और उसके हाथ में फिर छुरी होती है। आप क्या समझते हैं कि हमारे तलबा व तलबात के नाम क्या पैगाम देंगे? होम्योपैथिक कैसा इलाज है? क्या हमें इसके डॉक्टर पैदा करने चाहिए? हर थेरेपी की जो है ना अलहदा वो है, जो है मिजाज है, अलहदा शिफा का तरीका है, हर चीज़ अलहदा है। हर जो होम्योपैथिक है, इसमें बहुत ज़्यादा क्योर के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। हम बीमारी को मुकम्मल शिफा की तरफ लेके जाने के लिए कोशिश करते हैं कि मरीज़ मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाए, ना कि आदी हो जाए दवाइयों का। तो बेहतर यही है कि जो दोस्त हैं वो भी जैसे डॉक्टर बनते हुए टाइम लगता है, ऐसे होम्योपैथिक मरीज़ बनते हुए भी टाइम लगता है। लोगों को इस चीज़ को समझते हुए टाइम लगता है कि हमने कैसे होम्योपैथिक को अपनाना है, और जो इस तरफ आ जाता है वो उसका फिर दूसरी तरफ जाने को दिल नहीं करता। इसी तरह होम्योपैथिक डॉक्टर्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आरफ वाला में सिर्फ 5-6 होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और मेरा ख़्याल है कि मेरे बाद, शायद मैंने 25 साल पहले शुरू किया था, मेरे बाद सिर्फ 2 या 3 दोस्त और नए आए हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड हैं। और मेरा तो यही है कि दिल की तमन्ना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पेशे की तरफ आएँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। डॉक्टर साहब, आपके बारे में आरिफ आला के अंदर एक मिथ बड़ी मशहूर है कि डॉक्टर जो नवीदुल हसन साहब हैं, वो बड़े कम पैसे लेते हैं बाकी डॉक्टरों की निस्बत। इसकी रीज़न क्या है? मेरा ये असूल है कि मसरूफ़ रहे बंदा, कि सारा दिन काम में लगा रहे और थोड़े-थोड़े लेता रहे, वो ज़्यादा बेहतर तरीका है कि सिर्फ़ बंदा 2-3 पेशेंट से ही इतना वो ले ले कि उन्हें निचोड़ ले। उससे 100 दर्जे बेहतर है कि इंसान सारी दिन मसरूफ़ रहे और हर किसी से 100, 50, 150 ऐसे 200 तक ऐसे लेता रहे। वो ज़्यादा बेहतर है कि सारा दिन मसरूफ़ रहे। डॉक्टर साहब, होम्योपैथिक के जो पेशेंट हैं वो किस जगह पे भी आपको देख और सुन रहे हैं, उनके नाम क्या पैगाम देंगे? ये तरीका इलाज लेंथी है लेकिन प्रॉपर है, लोग इसको समझते नहीं हैं, इसकी क्या रीज़न है? हाँ, मसला तो ये है कि जब आप एलोपैथिक मेडिसिन खाते हो, ब्लड प्रेशर की खाते हो, शुगर की खाते हो, या कोई भी खाते हो, तो आप सारी ज़िंदगी वो दवाई खाते रहते हो, लेकिन आप ये कहते हो कि ये लंबा इलाज नहीं है। ठीक है ना? वो सारी ज़िंदगी दवाई खाता रहेगा। एपिलेप्सी का पेशेंट है, वो सारी ज़िंदगी दवाई खाता रहेगा। लेकिन अगर हम बताते हैं कि आप 2 से 3 महीने में ठीक हो जाओगे, क्योर हो जाओगे, ब्लड प्रेशर आपका बिल्कुल ठीक रहने लग जाएगा, कभी ज़रूरत हो तो आपको बदपरहेज़ी हो या एपिलेप्सी के, अल्लाह का शुक्र है मैंने बहुत ज़्यादा केस क्योर किए हैं, और उन्होंने 2-3 माह दवाई खाने के बाद उन्हें 15-15, 20-20 साल हो गए, उन्हें ना कभी फिट्स आया है, ना कभी कोई प्रॉब्लम हुई है, तो वो बिल्कुल क्योर हुए हैं। इस वजह से लोग उसे नहीं ये समझते कि ये लंबा इलाज है। वो हमें ये कहते सारी ज़िंदगी उधर दवाई खाते रहेंगे, उसे लंबा नहीं कहेंगे, लेकिन इधर 2-3 माह खानी पड़ जाए तो उसे वो लंबा समझने लग जाते हैं। डॉक्टर साहब, आज के सेशन का मेरा आखिरी सवाल, बड़ा टाइम लिया मैंने आपका, बहुत शुक्रिया, कि हमारे मुआशरे के अंदर देखा गया है कि हमारे अंदर बर्दाश्त की कमी बड़ी नज़र आ रही है, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में बड़ा बिगाड़ पैदा हो रहा है। फैमिली की जो हमारी ये चलता सिस्टम है, फैमिली के अंदर जो है ना बहन भाइयों से लड़ रहे हैं, ख़ानदान में लड़ाइयाँ, मियाँ बीवी के अंदर लड़ाइयाँ चल रही हैं। ये जो हमारे अंदर बर्दाश्त की कमी है, इसकी रीज़न आप क्या समझते हैं? कैसे बेहतर कर सकते हैं इस मामले को? सबसे बड़ी इसकी वजह दीन से दूरी है।
جب ہمارے دل میں یہ خوف ہوگا کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمیں کسی کا برا نہیں کرنا ہے، ہمیں کسی کا برا نہیں کرنا ہے، ہمیں ہر کسی کا اچھا کرنا ہے، ہمیں ہر کسی کا بھلا کرنا ہے، ہمیں ہر کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا معاملہ ہوگا کہ برداشت نہ پیدا ہو۔ جب لوگ یہ دل میں یہ بیٹھ جائے گی بات کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم نے دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں، ہم نے دوسروں کی پریشانیاں دور کرنی ہیں، ہم نے ہمارے دل میں اپنے رب کا خوف، اپنے حبیب کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، تو پھر میرا خیال ہے کہ یہ اور نفسا نفسی ختم ہوگی تو یہ سارا معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ جی ناظرین، ٹیم وائس آف پنجاب کے ساتھ محو گفتگو تھے عارف اعلیٰ کی ایک نامور شخصیت محترم جناب ڈاکٹر سید نوید حسن شکیل صاحب، ان کا بہت شکریہ، انہوں نے اپنا قیمتی ٹائم ہمارے لیے، ہماری عوام کے لیے دیا۔ ٹیم وائس آف پنجاب بہت جلد ملے گی ایک نئے پروگرام کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا۔ ٹیم وائس آف پنجاب کو اجازت دیں، اللہ حامی و ناصر۔